Okay, sir. Okay. I understand, sir. Jyoti ma'am, Yes, sir. please share the first screen of your PPT. Okay, sir. All others will keep their mic on mute, and only when you're talking, unmute it, talk, and again make it mute. Okay, sir. Okay. Yes. Is it okay, sir? Yes, yes, yes. Fine. Can we have some discussions? Yes, ma'am, you can. Of course, you can look at the YouTube chat before it starts, and you can ask some questions to the students. 5 minutes है. गुंजन चावड़ा कैसा चल रहा है, भरत रवि कुमार कैसा चल रहा है, वो बात कर सकते हैं. Let them type. Yes, sir. In similar way, I would like to ask. So let us go to me on YouTube. A very good morning, students. I hope you have gone through the previous class and previous slides. So if you have any queries related to it, you can ask me before we start the class. Instead of saying hi and hello, I would like to ask some relevant queries. On YouTube, it is showing physics class. Okay.
Good morning, Mahesh sir. Jyotsna ma'am, are you here on YouTube? Mahesh sir, good morning. Have you joined? Good morning, sir. Good I'm morning. here. Okay, okay, sir. Thank you. Mahesh sir, Mukesh sir, please make a comment on YouTube if you are here. Just a minute. Are we supposed to be on YouTube as well? No, for the co-panelist, it's not important. Okay, Just a minute. I am seeing it. okay. Mahesh sir and Mukesh sir are not supposed to be on YouTube, but if they have sufficient time to do that, they can go for that. Otherwise, the other respected teachers are there. Okay, ma'am. Okay. Thank you. I am also on YouTube, but there is no special question right now. It is showing physics PPT. I think first slide. Sir, you are watching physics class, I think. हाँ. Go to business studies YouTube link. So please send the link. Okay, okay, I'm sending. No, I have got it. Okay, okay. Slide is showing, ma'am. You are live. Like, okay. But I'm not able to see it. You concentrate only on the Okay, class. fine. Okay. Okay. Yes, it's there. So may I start now? It's 10:30. Mohan sir, can we start? All set? May we Yes. start the class? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. Please start. So students are ready? Gola sir and Mahesh Jain sir, they have make their presence. So a very good morning, all the students. And I would like to start my lecture today with one thought. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. So we are on this positive note going to start a class today for business studies class 12. स्टूडेंट्स प्लीज माइंड दिस कि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करते रहेंगे. सो यू आर बीइंग वॉच्ड एंड अंडर ऑब्जर्वेशन. आपने पिछले सेशंस के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो देखी होंगी. पिछले सेशन के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे और इस चीज को समझकर हम ये मानकर चल रहे हैं कि पिछली चीजें आपको आती हैं. बट वी विल हैव अ क्विक रिवीजन to that session also. पिछले वीडियोस देख करके यदि आप क्लास पर आते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं. पिछले सेशन में आपने क्या सीखा है वो सब आप यदि पढ़कर बैठेंगे अगली क्लास के लिए तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे जो हम कहना चाहते हैं. इसके अलावा बेटा एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि कुछ बच्चे जो इररिलेवेंट कमेंट्स देते हैं या जिनका ध्यान पढ़ते हुए भी पढ़ाई पर नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ जो है कि एटीट्यूड इज अ चॉइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ऑप्टिमिज्म इज अ चॉइस, काइंडनेस इज अ चॉइस, गिविंग इज अ चॉइस, रिस्पेक्ट इज अ चॉइस. सो व्हाटएवर चॉइस यू मेक, it makes you. So choose wisely. So with these words, I would like to start this class. Today we are going to start with this one video. I hope you would like to
लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के आधार पर हम आगे आने वाले सेशन में, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपसे कुछ पूछेंगे। तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, और मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को देखेंगे। Okay, from my side, the voice is clear. Let us come back to the slide now. So with this video, I would like to give you a message that a good management and a bad management leads to the success. So always a good management is a success, and bad management results into wastage of resources. So today we are going to make a quick revision about the concept of management, meaning of effectiveness and efficiency. And later on, we will cover objectives of management, importance of management, and nature of management as a science, art, and profession. So this is a news, one slide is showing, this is also a link. And if you are not getting the voice, that is why I'm not clicking on it. This is a news about the COVID-19 impact on education and the students. You must be knowing कि COVID-19 की वजह से जो इतनी एक वैश्विक महामारी के रूप में इसने हमें प्रभावित किया है, तो इससे हमारी जो सरकार है एक इनिशिएटिव ले रही है ऑनलाइन क्लासेस का, और इसके लिए हमारी जो सरकार है वो बधाई की पात्र है, और हम सभी बच्चों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। तो हम इस थॉट के साथ कि जो हम इनिशिएटिव सरकार ले रही है उसका फायदा उठाएंगे, और एक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये दृष्टिकोण कहता है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक है, क्योंकि बदलते समय के साथ हम बदल रहे हैं। तो जब चेंज आता है तो वी आर एक्सेप्टिंग द चेंज एंड वी आर गोइंग अहेड। You cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. इसलिए जो पहले समय था जब हम फिजिकली पढ़ाई कर रहे थे वो एक और दौर था, और अब एक नया दौर है, और इस नए दौर में नई परिभाषाओं के साथ हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज। Chapter 1, Nature and Significance of Management. The slide is showing the mind map of the chapter. इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रबंध की महत्ता और प्रकृति के बारे में बताएगी, वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स, उसमें घटक क्या हैं, उसके कौन कौन से लेवल्स हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रबंध की महत्ता क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, और मैनेजमेंट में समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है, और उसकी प्रकृति कैसी है। तो इस
माइंड मैप से आपको ये पता लग सकता है कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक पेज पर सिमट गया है। तो इस पेज को सिमटना है तो हमें इसको एक एक पॉइंट को बढ़ते हुए आगे जाना है। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है उनके लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? तो बेटा ट्रेडिशनल व्यू से यदि हम देखें तो जो मैनेजमेंट है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब काम करवाने की कला मैनेजमेंट है। जबकि मॉडर्न व्यू जो कहता है, आधुनिक तरीके से यदि हम देखते हैं तो वो कहता है कि इट रेफर्स टू क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच individuals working together can attain group goals efficiently and effectively। अर्थात आधुनिक रूप में प्रबंध से तात्पर्य एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है, एक ऐसा आंतरिक वातावरण जिसमें सभी व्यक्ति मिल करके संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुशलता पूर्वक प्रभावशाली तरीके से कार्य को करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं परिभाषा क्या कहती है प्रबंध की। तो बेटा प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में जो मैनेजमेंट है वो है गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So here we can focus on the three main elements are identified by this definition. They are process. Process means एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें series of steps होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिनको आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अर्थात नियोजित करना, क्या काम करना है उसको संगठित करना, सभी संसाधनों को, फिर उसके लिए लोगों को लगाना, डायरेक्ट करना, निर्देशन देना, और फिर कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो एक करेक्टिव मेजर लेना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो इन सभी को हम प्रोसेस से संबंधित कर सकते हैं। अगला जो घटक है वो है इफेक्टिवनेस, अर्थात प्रभावशाली होना। मतलब मैनेजमेंट के अंदर it means completing the right task to achieve the deputed goal within the time frame। मतलब एक सीमित समय में काम को पूरा करना ही प्रभावशीलता होती है। अगला है एफिशिएंसी, कुशलता, अर्थात completion of task using minimum resources। कम से कम संसाधनों का उपयोग करके जब हम काम को पूरा करते हैं तो वो एफिशिएंसी कहलाती है। प्रभावशीलता और कुशलता, इन दोनों में फर्क है। इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज। अर्थात कॉस्ट कुछ भी हो लेकिन आपने समय पर काम किया, ये इफेक्टिवनेस है। जबकि एफिशिएंसी से तात्पर्य है कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम को किया है, अर्थात मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट आपने लिया है। एक बैलेंस्ड एम्फेसिस होना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का बहुत ही आवश्यक है, जिसमें इफेक्टिवनेस से तात्पर्य काम को पूरा करने से लेकर के है, जबकि एफिशिएंसी से मतलब है कम संसाधनों में बिना वेस्टेज के काम को करना। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में जो डिफरेंस है हम उसके मीनिंग के रूप में देखें तो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, वेयरएज एफिशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब भी ये प्रश्न आए आपको ध्यान में रखना है, प्रभावी होंगे जब हम काम को पूरा करेंगे और कुशल तब होंगे जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट पे करके काम को पूरा करेंगे। इफेक्टिवनेस के जो मैनर है वो सिंपल ही आप कह सकते हैं कार्य को सही तरीके से करना है, और एफिशिएंसी में जो फोकस है वो आपको जल्दी काम करना है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना है। उद्देश्य यदि हम देखें, इफेक्टिवनेस का उद्देश्य है टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। जो कार्य का आखिरी जो मोड है, जो कार्य की बिल्कुल अंतिम जो छोर है, उसको आपने पा लिया तो आप इफेक्टिव हैं। जबकि आपने काम किया और आपने वेस्टेज कम की तो वो हमारी एफिशिएंसी कहलाती है।
मेन फोकस यदि हम देखें, इफेक्टिवनेस इज ऑन टाइम, जबकि एफिशिएंसी में फोकस है कॉस्ट पर। हम मैनेजमेंट को अपने अलग अलग पहलुओं से देखते हैं और हर काम के उदाहरण के लिए हम अपने आप को जोड़ करके समझ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह पर इसकी हमें आवश्यकता होती है। तो इसका एक उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं। आपको घर से स्कूल आना है, घर से स्कूल पर आप टाइम पे पहुंच गए तो आप इफेक्टिव हैं। लेकिन एक आपका दोस्त है जो ऑटो दे 100 रुपए देकर के स्कूल पहुंच रहा है और आप 5 रुपए में पहुंच गए, तो यहाँ आपकी जो 5 रुपए में देकर पहुंच गया ये एफिशिएंसी है। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल आपसे अपना जुड़ा हुआ एग्जांपल है, लेकिन मैनेजमेंट को हम यहाँ बिजनेस में बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये वहां पर लागू होता है जहां बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम होती है। एक एक पैसा यहाँ पर कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाता है, इसलिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर बेटा हम ये प्रश्न, तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर सही रूप में देंगे। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला है कि एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मैक्सिमम कॉस्ट। आप अपना आंसर यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, ट्राई इट। I hope you must have replied. Second question. Efficiency means completing activities and achieving goals. कुशलता से तात्पर्य कार्य को पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। अपना सत्य असत्य या ट्रू फॉल्स आप अपने मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैनेजमेंट लीड्स टू इनएफिशिएंसी। प्रबंध अकुशलता की तरफ इशारा करता है, क्या ऐसा है? मैं उम्मीद करती हूं कि आपने प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया होगा। तो अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए बेटा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। चेक योरसेल्फ कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्यों है फॉल्स? आप ये देख सकते हैं कि एफिशिएंसी में कॉस्ट की बात, मैक्सिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि हम मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में यदि हम देखें तो एफिशिएंसी में कॉस्ट की बात करनी है, जबकि वो एक्टिविटी के कंप्लीशन पे सिर्फ बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी की बात कर रहा है, जबकि मैनेजमेंट एफिशिएंसी की बात उसे करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आप अगले जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से जवाब देंगे। पहला है, पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ डैश एंड डैश। हमने इसको अभी पढ़ा है। कौन से दो वर्ड्स यहां पर आएंगे आप इसको सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करती हूं कि आपने आंसर लिख लिए होंगे बेटा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द डैश ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. बहुत सिंपल है, हमने स्टार्ट इसी लाइन से किया था। आप इसका उत्तर भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। उम्मीद करती हूं आपने ये लिखा होगा। अब हम चेक कर लेते हैं अपने आप को। तो पहले प्रश्न में पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस, हमने सिर्फ मैनेजमेंट की बात की थी, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पॉजिटिव शब्दों की बात की थी। जबकि पुअर मैनेजमेंट में यदि हम देखें तो हम इसको ऑपोजिट कर देंगे। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज द आर्ट, यह पहली लाइन थी कि ये कला है कि काम कैसे कराना है, कुशलता पूर्वक प्रभावी रूप से किस प्रकार हम काम कराएंगे। तो ये कला है जो प्रैक्टिस से आती है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है कि एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद व्हाट? ऑप्शन ए, डूइंग द राइट थिंग, ऑप्शन बी, डूइंग थिंग्स राइट, ऑप्शन सी, achieving end results, and option D,
none of the above. You please give your responses to YouTube comment boxes. तो आइए चेक कर लेते हैं. Efficiency is concerned with option B, doing things right. So efficiency aims at reduction of cost through optimum utilization of resources and avoiding wastage of resources. So this is about. Next question. Various input resources are required by management to complete a task effectively and efficiently are. अब इनमें से ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस तरह से हमारे जो इनपुट के रिसोर्सेज हैं कौन कौन से चाहिए. ऑप्शन ए मनी एंड मटेरियल, ऑप्शन बी पर्सन एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन सी both of the above एंड ऑप्शन डी none of the above. आसान है, मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आपने कर लिया होगा. आइए अब हम चेक कर लेते हैं. Various input resources are required by management to complete a task effectively and efficiently. So option C is right कि हमें चारों चीजें चाहिए, मनी, मटेरियल, पर्सन एंड इक्विपमेंट. तो इसलिए दोनों ऑप्शंस होंगे. Next question is effectiveness relates to what? Doing the right task, completing activities, achieving goals, all of the above. हर कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रश्न करेंगे बेटा, ताकि हमने जो सीखा है वो हमें आता है या नहीं आता है, इससे हम अपने आप को चेक करते रहे बीच बीच में. तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम आगे नहीं लेंगे, बट बिकॉज ये टॉपिक मैंने रिकैपिचुलेशन के लिए लिया है, तो इसमें जो प्रश्न है वो हम कुछ ज्यादा आपसे पूछ रहे हैं. So effectiveness relates to answer D, all of the above. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आप इसको लर्निंग टेक्निक, हम इसे कैसे याद करें, ये भी बच्चों के लिए एक दुविधा रहती है कि हम इसे कैसे याद करें. तो आपको बता दें कि जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि ये यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है और इंटेंजिबल फोर्स है. मैं जब पढ़ाती हूँ अपनी क्लास में भी ना बच्चों को, तो मैं साथ ही उन्हें इनके याद करने का तरीका समझा देती हूँ. तो इसी तरह आप सबके साथ में एक लर्निंग टेक्निक शेयर कर रही हूँ कि हम इन शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख दें कि एक एक्रोनिम बन जाए, जब हम इनमें से कोई एक एक लेटर को ले लेते हैं. मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनामिक, परवेसिव, इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, सब पे से आप देख सकते हैं रेड कलर का एक एक वर्ड मैंने उठाया और यहाँ लिख दिया एमसीडी पिग. तो दिस सबको याद करना नहीं मुश्किल है, लेकिन एमसीडी पिग बड़ा याद रहेगा आपको. तो आप रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में बैठे हुए भी. एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. आइए अब हम एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं. पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अर्थात उद्देश्य पर निर्धारित है. हमारा मैनेजमेंट का प्रबंध की एक प्रक्रिया उद्देश्यों पर आधारित है. जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है बेटा, तो वो सिंपल एंड क्लियरली अपने गोल्स को बनाती है, जो बेसिक रीजन है उसकी एग्जिस्टेंस का. तो मैनेजमेंट यूनाइट करता है अपने सारे एफर्ट्स, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी जहां भी छोटे रूप में बड़े रूप में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी एक ही डायरेक्शन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्रबंध है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. अब इसको याद रखने के लिए हमें परवेसिव वर्ड जो है वो नया लग रहा होगा आपको. हिंदी में इसे कहते हैं सर्वव्यापक, और सर्वव्यापक हमारी शब्दावली में बहुत ही रचा बसा हुआ है. जब हम किसी भी सुपर पावर की बात करते हैं तब, तो सर्वव्यापक, प्रबंध भी सर्वव्यापक है. ये सब जगह चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, इकोनॉमिक में चाहिए, सोशल में, पॉलिटिकल में, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सोशल हो, सब जगह चाहिए.
हमें घर में भी मैनेजमेंट चाहिए। यदि हम अपनी किताबों को भी मैनेज नहीं कर पाते तो हम पढ़ नहीं पाते। हम अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को मैनेज यदि नहीं कर पाते तो हम पास नहीं हो पाते, अच्छे नंबर नहीं ला पाते। यदि क्लास के अंदर डिसिप्लिन को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो भी हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सभी चीजों को अपने जीवन में भी सभी चीजों को तरीके से रखें तो हम अच्छा रिजल्ट पा पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि हर जगह चाहिए, वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एनजीओ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, बाहर हो, सब जगह पर मैनेजमेंट की जो आवश्यकता है वो होती है। अगला पॉइंट हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का अर्थ है कि उसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसमें तीन चीजें मूल रूप से महत्वपूर्ण हैं। वर्क, पीपल, ऑपरेशन, अर्थात कार्य, लोग और क्या करना है वो काम। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को हम जो है समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब पिक्चर से देख सकते हैं कि बहुत सारा काम है ना। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। क्या काम करना है, किस तरह से उद्देश्यों की पूर्ति होनी है, कौन से माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा, तो ये सब कुछ कि व्हाट इज टू बी डन इसको डिटरमिन करता है। तो इसमें प्लानिंग, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, सब चीजों को एकजुटता उनकी, और कंट्रोलिंग कि यदि कहीं गलत कर रहे हैं तो तुरंत उसको सही रूप से करना, नियंत्रण। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये तीन चीजें शामिल होती हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय पीपल। मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर से कि लोग चाहिए, छोटे बड़े हर लेवल पर हमें काम करने के लिए लोग चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैनेजमेंट का काम है वो लोगों ने करना है और लोगों से करवाना है। तो मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, जिस व्यक्ति में जो ताकत है उसको प्रभावी तरीके से उपयोग करना, और जो उनकी वीकनेस है उनको इग्नोर करना। हर इंसान में वीकनेस होती है। एवरी एस्पेक्ट हैज टू, एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट। तो जो हमारे काम की चीज है वो लें, जो बेकार की है वो छोड़ दें। हमारी मम्मी हमें शुरू से सिखाती थी कि एक का अच्छी बात है तो कान एक से अंदर डालो, दूसरा जो है वो बंद कर लो। अच्छी बात है तो, बेकार बात है तो दोनों कान खुले, एक से डालो बाहर निकालो। तो ये मैनेजमेंट है, एक टेक्निक है कि स्ट्रेंथ जो है उनको ध्यान में रखो जब हम लोगों से डील करते हैं, और जो नेगेटिव चीज है उसको इग्नोर कर दें। सो इट इज रिलेटेड, it determines by whom the work is to be done। तो इसके अंदर मैनेजमेंट के जो दो फंक्शन हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये दो जो काम है ये पीपल से रिलेटेड है। तीसरा इसका पॉइंट है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। सो इट डिटरमिन्स मिक्सिंग ऑफ both the above points, management of work and management by people। So it is related to production, sales and purchase। तीन चीजें हैं इसमें, प्रोडक्शन और सेल्स एंड परचेज। प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल, ये तीनों चीजें मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन में रहती हैं, क्योंकि इनपुट को आउटपुट में बदलना है। तो इसके लिए सामान खरीदना भी है, बनाना भी है और उसको बेचना भी है। ये तीनों चीजें आती हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि सभी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होने के बाद मैं आपसे फिर से क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की वो है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप अपनी जिंदगी में देखिए, आपने अलग अलग क्लासेस से पढ़ाई की, जो आप 11th क्लास में थे, जो आप 10th क्लास में थे, तो दोनों अलग थे, है ना। व्यक्ति वही है लेकिन आप चेंज करते हैं। हर पल इंसान जो है वो बदलता है। प्रबंध का काम भी कुछ ऐसा ही है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके अंदर सीरीज है कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट की। ठीक है, फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग मैनेजर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो साइकिल है, एक्ट, प्लान, डू, चेक। पहले प्लान करिए, फिर एक्ट करिए,
फिर उसे चेक करिए, और जब आपने चेक किया और उसमें कुछ जो चेंजेस करने हैं, उसके बाद दोबारा से डू आ जाता है, और डू के बाद दोबारा से प्लान आ जाता है। सो ये आप कॉन्टिन्यूस साइकिल में कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मतलब ग्रुप को देखिए कितने बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से किसी ने बताया भी है कि गिव थॉटफुल ऑफ फीडबैक, रिस्पेक्ट अदर्स, इन टास्क ऑल द टाइम। आप यदि देखेंगे तो ग्रुप्स की देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस। तो ये याद करने का तरीका, जैसे मैंने आपको पीछे बताया एमसीडी पे कि ग्रुप्स को भी इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, बट हमारा यहाँ पर जो कंसर्न है वो इससे है, all the individuals in the organization contributes towards achieving the goals set by the organization। जब भी हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो उसकी सफलता भी उतनी चांसेस होते हैं और उसकी असफलता के भी उतने चांसेस होते हैं। यदि आपने अपने अहम को परे रख करके टीम की तरह से काम किया तो आप सक्सेस पा जाएंगे, और जब आपने खींचतान की मैं, तो आपका जो ग्रुप गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। आप इसे महसूस कर लीजिए। यदि आपको क्लास में मैम ने कोई असाइनमेंट दिया, आपको ग्रुप में करना है, तो आपने कैसे किया? अब देखिए ईएमसी के लिए हमने बच्चों को प्रोजेक्ट दिए, जहां पे बच्चों ने यूनाइट होकर प्रोजेक्ट किया वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से किया, ठीक है ना। लेकिन जहां पे ये आ गया कि मैं तो अपना करूंगा, वो काम अचीव ही नहीं हुआ। ग्रुप का काम था, हो ही नहीं पाया। तो अभी जो शुरू में भी मैंने वीडियो दिखाई थी वो यहाँ पर रेफरेंस के लिए इसीलिए डाली है, आप देख लिया इसको बाद में, आप स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब पे इसको बाद में देखना, कि जब हम एक टीम में काम करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं, और जब हम इंडिविजुअल होकर के काम करते हैं तो हमारा जो ग्रुप का गोल है वो अचीव नहीं हो पाता, और हम खुद भी क्षीण विहीन हो जाते हैं। तो गोल ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है इट रिप्लेसेस आई विद वी, कि हम हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो ये आपने बचपन में कहानी सुनी होगी लकड़ियों वाली, है ना, एक एक लकड़ी तोड़ी दी जाती है, लेकिन जब 4 लकड़ियां इकट्ठी तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूट पाती है। तो इस तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये इसकी एक विशेषता है। अगली छठी विशेषता है मैनेजमेंट की कि ये डायनामिक फंक्शन है। मैंने आपको शुरू में कहा था और आपको अभी भी बता रही हूँ कि कोविड-19 की वजह से आज मैं जो कर पा रही हूँ उसी की वजह से कर पा रही हूँ, है ना, कि पूरे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा कि भाई फिजिकल टीचिंग बंद करके हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ेगी। क्यों? उद्देश्य था बच्चों को फायदा पहुंचाना। Management is a dynamic function. An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. तो बहुत सारे कारण हैं जो प्रभाव डालते हैं, है ना। तो in order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. वातावरण की आवश्यकता के अनुसार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यदि बदलना पड़े तो बदल जाओ। ये कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैकडी का जो बर्गर है, खाते हैं सभी, गए होंगे आप लोग, है ना। तो मैकडोनल्ड ने अपने मेन्यू को इंडियन मार्केट में सरवाइव होने के हिसाब से अब चेंज किया, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला जो टेस्ट था वो इंडियंस को भाया नहीं। घर में भी आप देखते हैं, मैंने नीना गुप्ता का एडवर्टाइजमेंट देखा कि भाई चाइनीज खाना है लेकिन इंडियन रेसिपी के हिसाब से बना हुआ, तो इंडो चाइनीज एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे ही सबसे बड़ा एग्जांपल इसके आज की डेट में हम देखें तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग है, जो ये दिखा रही है डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट। सो दिस इज गुड मैनेजमेंट। सो our top level managers are really need applaud for this. They have shown a good technique of management that proves the characteristic of management is a dynamic function. Next, management is an intangible force. इंटेंजिबल शब्द हमने सबसे ज्यादा 11th क्लास में पढ़ा है ना, अकाउंट्स के पेपर में बार बार आता है, और इंटेंजिबल वर्ड याद आता है तो हमें गुडविल याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि गुडविल दिखाई नहीं देती है लेकिन प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, ऐसे ही मैनेजमेंट का जो काम है बेटा, आप कोई चीज नहीं है, ये फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इसकी जो आप देख सके, है ना, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है वो इसकी इफेक्टिवनेस से एक अच्छे गोल्स की जब अचीवमेंट होती है उससे पता लग जाती है। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans. Employees are happy and satisfied and work in a proper order if
मैनेजमेंट इज गुड। तो मैनेजमेंट एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी आंतरिक ताकत है जो सबको जोड़ के रखती है और काम को पूरा करने में मदद करती है प्रभावशाली तरीके से। तो बेटा इसके बाद सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। और यदि आपको लगता है कि मैडम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया और हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जब अगली क्लास आपकी हो तो उस सुधार के रूप में हो, क्योंकि आई एम डायनेमिक, है ना, चेंज के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेट अस ट्राई योरसेल्फ दीस क्वेश्चंस। Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. Option A, management is all pervasive. Option B, management is goal-oriented process. Option C, management is a continuous process. And option D, all the above. अब ये देखिए, ये प्रश्न यदि आप पढ़ रहे हैं कि भाई प्लान किया है 30% सेल करनी है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो कौन सा फीचर, कौन सी विशेषता है मैनेजमेंट की जो यहाँ से पता लग रही है ना, उसको आपने करना है। और यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर हल कर पा रहे हैं तो देख लीजिए बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से दिया है। ठीक है, तो बोर्ड का क्वेश्चन आप अभी कर पा रहे हो। ये पूरा चैप्टर जो है 5-6 नंबर से कम का नहीं है, है ना। 16 नंबर के 3 चैप्टर बताए, तो ये चैप्टर 5-6 से कम नंबर का नहीं है। यदि आप इस क्लास को अच्छे से करते हैं तो आपने 4-5 नंबर पक्के समझिए बोर्ड में। तो इसी तरह से तैयारी करनी है। आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इट्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम गोल्स की बात कर रहे हैं। So management is considered to be goal-oriented as an organization is brought into existence for realization of certain goals. Fine. चलिए next question देख लेते हैं कि management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? अब देख लीजिए प्रबंध क्या कह रहे हैं। Equally important है, मोदी जी जवाब देते हैं ना, तो पॉलिटिकली वो एक बहुत अच्छे लीडर है ना। तो एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लॉकडाउन का डिसीजन लेना आसान नहीं था, पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, तो, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल में भी मैनेजमेंट चाहिए और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। तो आप कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। बी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। Option C, management is all pervasive. And option D, management is a group activity. अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेपर पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर पेन तो आप ये स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और आपके पास सब कुछ हो जाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, है ना। आप अपना आंसर सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और अब आप चेक कर लीजिए आपका आंसर ठीक है या नहीं है। इट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि मैनेजमेंट हर तरीके की संस्था में जरूरत होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर्स डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, अ बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। तो बेकरी ने चीनी कम कर दी ताकि फैट कंटेंट कम हो जाए। तो दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, क्या है मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, एन इंटेंजिबल फोर्स। ऑप्शन बी, अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑप्शन सी, अ डायनामिक फंक्शन। एंड ऑप्शन डी, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। तो जल्दी से बेटा आपने लिख दिया होगा जवाब, आई होप। फटाफट देखिए जवाब। वेरी गुड, रिप्लाईज आ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं अपने आप को कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है ना। हमने बात की थी चेंज की, कोविड-19 का एग्जांपल लिया था। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, जरूर जो सही जवाब दिया होगा आपने। इट इज इंपॉर्टेंट to be successful, a business adapts itself to the changes in the taste and preference of the consumer. One more question. People in the organizations carry out diverse tasks with the aim to achieve, option A, different objective, option B, common objectives, option C, both the above, and option D, none of the above. तो आप समझ सकते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका।
लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एम अलग अलग हो सकता है, ये एक होता है, किस तरफ होता है? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी कॉमन ऑब्जेक्टिव, ग्रुप की बात की थी हमने, ग्रुप गोल्स की बात की थी, है ना? सो मैनेजमेंट सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एंश्योर रियलाइजेशन ऑफ बोथ। अगला टॉपिक ले लेते हैं बेटा, जो है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं बेटा, उसके 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जिनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो 3 हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है रहना, अर्निंग थ्रू रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब है टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। ग्रोथ का मतलब है टू इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल का मतलब क्या है? मतलब प्रॉफिट कमाना, अर्निंग एनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कवर होती रहे। कई बार प्रॉफिट नहीं भी हो रहे होते तब भी बिजनेस चल रहा होता है कि कॉस्ट कवर हो रही है। तो मैनेजमेंट जो है वो पॉजिटिव डिसीजंस लेता है विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, एंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, कि वो बना रहे, बिजनेस बना रहे। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट को कमाने की योग्यता बनी रहे। मतलब जब बिजनेस नया नया भी शुरू हुआ है तब भी यदि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो उसकी एबिलिटी है। अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इज रिक्वायर्ड। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो बिजनेस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में वो सर्वाइवल ही एक्सपेक्ट करता है, दूसरी स्टेज में वो प्रॉफिट कमाने की क्षमता के लिए ध्यान रखता है, और जब ये भी आ जाता है तो बिजनेस जो है वो ग्रोथ की तरफ इशारा करता है कि ग्रोथ करनी है। मतलब ग्रोथ क्या है कि फ्यूचर में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भुनाना, एक्सप्लॉइट करना, मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सेल्स ज्यादा होगी तब भी ग्रोथ हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा सेल का तब भी हो जाएगा सेल वॉल्यूम से, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यदि बढ़ते हैं तब भी यही मतलब है कि ज्यादा काम हो रहा है, और प्रोडक्ट्स यदि आप रीच बढ़ाना चाहें तो वो भी ग्रोथ को डिटरमिन करती है। जबकि सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य हैं, वो क्या है? इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। समाज के बारे में कौन है? समाज में लोग हैं, लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा अच्छा सामान चाहिए, कम रेट पर चाहिए, चीप एंड बेस्ट चाहिए, लोग खाली ना बैठे रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स हो, क्रेच हो एम्प्लॉइज के लिए, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड हो प्रोडक्शन का, तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, क्योंकि ये सब समाज के लोग हैं। तो जो समाज बिजनेस से जुड़ा हुआ है उनके जो अपने उद्देश्य हैं, वो भी एक ग्रुप के जो उद्देश्य हैं, सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं, वो अब जो है पूरे करने की जिम्मेदारी भी जो बिजनेस है वो रखता है। आपने सुना होगा डिफरेंट स्कूल्स जो है किसी बिजनेस के नाम पर सुने होंगे, बिरला स्कूल सुना होगा, KR मंगनवर्ल्ड स्कूल है, तो वो स्कूल के ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉइज के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ काम करती हैं, तो वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती हैं। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आपने यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जान माल को खतरा नहीं है एम्प्लॉइज के लिए, है ना? अब बढ़िया पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस, तो ये भी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मेथड है, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू वीकर सेक्शन, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब आ जाते हैं तीसरे और आखिरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पर। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, है ना? तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर हमने इसीलिए ली है कि एक लेडी है, वो फोकस करिए मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऐसे ही पर्सनल मतलब जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। उनकी इंडिविजुअल नीड होती है कि भाई मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए, मुझे पर्क्स अच्छे मिल जाए, मैं समाज में अपना एक स्टैंडर्ड सुधार सकूं, सोशल और सेफ्टी नीड है एम्प्लॉइज की, है ना? फेयर रिम्यूनरेशन मिल जाए, हाइजीनिक कंडीशन मिल जाए, काम को करने की अच्छी कंडीशन मिल जाए। आपने देखा होगा जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा मूवमेंट है एम्प्लॉइज की, एक से फटाफट से छोड़ के दूसरी में जाते हैं, जैसे ही उनको हायर पर्क मिला, फेयर रिम्यूनरेशन मिला, वो वहां पर चले जाते हैं। बेसिक एम्यूनिटीज जो हैं, पीयर रिकॉग्निशन, कई बार ये चीजें आपस में हावी हो जाती हैं क्योंकि पर्सनल दोनों ही पर्सनल चीजें हैं और एक दूसरे से हावी हो जाती है, तो व्यक्ति को अपने आप चूज करना होता है ना? तो इन व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति भी बिजनेस को ही करनी होती है। तो ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे।
इसके बेसिस पर आइए फिर से क्वेश्चन सेशन। बोर तो नहीं हो रहे होंगे आप, है ना? लेकिन यदि हो रहे हैं तो आप बढ़िया से अच्छे अच्छे कमेंट्स में हमें सजेशंस जरूर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट अपने क्लास के लिए उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, which of the following is not an organizational objective of management? Number 1, earning enough revenue to cover costs. Number 2, earning sufficient profits to cover risks of business. Number 3, increase in the prospects of business in the long run. And number 4, providing free education to their employees or children. अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अभी, है ना? तो आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, 4 में से कौन सा सही आंसर है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक के तुरंत बाद आपको करा रही हूँ, और बिल्कुल क्लास के आखिर में जब मैं आपको दूंगी तो आपके पास एक असाइनमेंट होगा जिसको आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो वो आप लास्ट जो स्लाइड है वो असाइनमेंट्स की स्लाइड होगी, तो आप उसको नोट कर लेंगे और अगली क्लास से पहले इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, अपने लिए नोट्स बनाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, है ना? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है ना? पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, देखते हैं पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है, सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। यदि ये खींचतान करेंगे तो ये एक दिशा में काम नहीं कर सकते, है ना? आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं, लैग रेस होती है ना, 3 लेग रेस, तो वो दोनों पार्टिसिपेंट्स का कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट का जो पहली इंपॉर्टेंट जो डिटरमिन करता है पॉइंट, वो ये है कि ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल्स टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो है ही हैं, साथ में वो अपने एम भी अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया कि भाई मुझे 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे 10% सेल्स भी बढ़ानी है। तो मैनेजमेंट एम कर रहा है टू अचीविंग दीज गोल्स बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो इन दोनों गोल्स की अचीवमेंट के लिए मिलकर के वो काम करते हैं। अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। ये इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट कुशलता बढ़ाता है। आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं, थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन थोड़ा आप इसको जूम करके देख लेंगे कि एफिशिएंसी लेवल हाई पर है ना? यदि आप मैनेज करके काम कर रहे हो तो आप अवेलेबल रिसोर्सेज को कॉस्ट कम करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप करते हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो आपकी कुशलता बढ़ जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कॉस्ट। कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट का मार्जिन अपने आप बढ़ जाएगा, है ना? 10 रुपए की चीज है, पहले 8 रुपए में बना के 10 में बेच रहे थे तो 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, अब आपने 7.5 रुपए में बना दी तो 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में भी मैनेजमेंट जो है वो मदद करता है। तीसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। बार बार हम बात करें, डायनामिक मतलब चेंज, है ना? तो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज होता है, चेंज के साथ हम ओवरकम कर जाते हैं। चेंजिंग सिचुएशन में अपनी सर्वाइवल, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज तीनों को ध्यान में रखते हुए हम उसको डील कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और फिर दोबारा से मैं यहाँ कोट करूंगी, कोविड-19 सिचुएशन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का ही एक रिजल्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो मैनेजमेंट की डिटरमिन करता है, फोर्थ पॉइंट, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन में हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में तो रखा है और मोदी जी ने, है ना, कि भाई घर में बैठो ताकि बाहर निकल के बीमार ना पड़ो। सो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। बिजनेस के अंदर भी हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ सैलरी बढ़ रही है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है बिजनेस तो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी अच्छी दे रहा है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, उसका सर्वाइवल, ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच सकता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट भी मैनेजमेंट की वजह से ही हो पाती है। अगला पॉइंट है सोसाइटी की डेवलपमेंट।
तो आप देख सकते हैं बेटा कि यदि अच्छा मैनेजमेंट हो तो सोसाइटी अपने आप डेवलप होती है। क्यों? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो घर पे कोई खाली नहीं बैठेगा, पैसे कमाएगा, चीजों को खरीदेगा तो अपना स्टैंडर्ड बनाएगा। एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैं अपना पहला वेबिनार ले रही हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू ऑल कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने दी है ना। तो सोसाइटी में आप ये देख सकते हैं कि सोसाइटी में करंट सोसाइटी कैसी है, लेकिन जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं ना, लैपटॉप चलाना आपको नहीं आता, आपकी नॉलेज की कमियां, आपने चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो आप नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पा रहे हो। ठीक है, पहले आप काम नहीं कर पा रहे थे, करंट सोसाइटी थी, बस अपना कांस्टेंट थे, जहां पे थे वहीं पर अपना जी रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, सोशल इश्यूज को जब ओवरकम किया तो अपने आप जो है आप समाज में आ गए। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट सोसाइटी कैसी है, जब परेशान हैं, एक उसमें लगे हुए हैं, काम पड़ा हुआ है, बातें आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बर्डन हो रहा है। लेकिन जब आप यूजर फ्रेंडली हो गए तो आपने देख लिया, घर फ्री हो गए, है ना, बर्डन सम हो गए कि आपके पास अब बर्डन नहीं रहा, आपने काम को बहुत अच्छे से कर दिया। काम बहुत ज्यादा था, सामान उठता नहीं था, मशीनों का यूज कर लिया तो आपके पास, ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो हमने ये पॉइंट्स पढ़े, अब इसके बेस पे हम चेक कर लेते हैं हमें समझ में कुछ आया है कि नहीं आया। आया है? आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है तो लिखना जरूर, ये मत भूलना, है ना। मैंने आपसे शुरू में ही बात की थी पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो चॉइस आपकी है किस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो चूज वाइजली, है ना। तो ट्राई योरसेल्फ, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई मैनेजमेंट? पहला पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है, बदलाव के साथ बदल जाओ। ऑप्शन बी, इंडिविजुअल एफर्ट्स को जोड़ता है। ऑप्शन सी, सोसाइटी का समाज में विकास करता है। या ऑप्शन डी, चारों पॉइंट्स। तो फटाफट से अपना आंसर लिखिए बेटा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। ऑल देख रहे हैं, पहला डायनेमिक, दूसरा ग्रुप गोल्स और तीसरा सोसाइटी की डेवलपमेंट। वेरी गुड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं और बहुत इजी भी है। क्यों? आपने आर्ट्स नहीं ली, आपने साइंस नहीं ली, आपने कॉमर्स ली, है ना। कॉमर्स लिए तो आपको आर्ट और साइंस समझना दोनों को पड़ेगा, है ना। आर्ट है क्या? आप पिक्चर से देख रहे हैं, ये सारे आर्ट की एग्जाम्पल है। आपको भी पता होगा, आप भी खुद आर्टिस्टिक हो सकते हैं। कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा नाटक करता है। तो आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। तो जो टैलेंट को यूज करके, प्रैक्टिस कर करके आप अपने आप को बढ़िया करते हो, तो वो आर्ट की पहचान है। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन of existing knowledge acquired through study, observation and experience। तो एक स्किलफुल काम है। आर्ट के अंदर क्या चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 4-5 मार्क्स के, कि फीचर्स हैं आर्ट के। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। जैसे आप किसी भी आर्ट से भी, मैं इसको बताऊंगी, ड्राइंग की भी जो पढ़ाई है वो होती है, ऐसी डांसिंग की भी पढ़ाई होती है, म्यूजिक की भी पढ़ाई होती है। तो हर एक आर्ट में एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जो थ्योरेटिकल नॉलेज को अटेन करने में, पाने में हमारी मदद करता है। उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी थ्योरी को बताते हैं कि भाई आप ऐसे करोगे तो आप बढ़िया काम कर पाओगे, है ना। म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक टीचर के पास जाना पड़ता है ना, खाली टैलेंट से काम नहीं बनता, तो इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करना। ये हर एक को नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि जिसके 100 में से 100 ही नंबर आए वो ही बहुत बढ़िया टीचर बनेगा, है ना। टीचर तो वो भी बन सकता है जो 60% नंबर ला रहा है, वो भी बहुत बढ़िया टीचर बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को समझ रहा है, बच्चों के लेवल पर आकर के अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहा है। तो टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब जब भी कोई आर्ट है तो जो बेसिक नॉलेज है वो तो सेम है, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहती है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया गया, इससे आर्ट का इफेक्ट आता है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूजिक क्रिएटेड बाय म्यूजिशियंस आर डिफरेंट थ्रू म्यूजिकल नोट्स यूज्ड आर द सेम। सब लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। गिटार आप पकड़ लो, गिटार मैं पकड़ लेती हूँ, है ना, लेकिन गिटार में आपने प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करी है तो आप अच्छे से बजा पाओगी। मेरे लिए वो डब्बा पड़ा रहेगा, मुझे आता ही नहीं, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं, कभी हाथ ही नहीं लगाया उसे।
वही कलर्स हैं, हम बखेर के उनको फेंक देंगे, वही कलर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना देंगे। तो हर मैनेजर के अपना एक स्टाइल होता है। हम ये सब बातें आर्ट की तो की हमने, लेकिन मैनेजमेंट से इसको रिलेट करते हैं कि मैनेजर का भी अपना एक यूनिक स्टाइल होता है चीजों को मैनेज करने का, है ना। आपके टीचर्स हैं इतने सारे, वो सब मैनेजर्स हैं, वो आपको किस किस अपने सब्जेक्ट में हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो हर लेवल पर एक मैनेजर होता है, वो उसकी टीम अपनी होती है, वो अपनी टीम को कैसे काम करा रहा है, वो उसका मैनेजरियल स्टाइल है। So he uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application. तो क्योंकि सारे आर्ट के फीचर, ये 3 फीचर आर्ट के हैं और ये तीनों के तीनों मैनेजमेंट में मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही बात करो जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो। मैं सामने तो नहीं हूँ, बट बाकी तो हम बातें तो वही कर रहे हैं। आपके जवाब आ रहे हैं मुझे। सो अगला जो नेचर है मैनेजमेंट का पॉइंट, वो है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब साइंस में, साइंस तो आपने पढ़ी है सबने 10th क्लास तक, है ना। आप देख सकते हो, पिक्चर भी बता रही है, लेंस है, दिमाग है, बीकर है, टेस्टिंग ट्यूब्स हैं और बहुत सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन सब। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो जनरल ट्रुथ पर बेस्ड है और उसको कहीं भी टेस्ट करो वो वैसी की रहे, वैसी रहे। आर्ट अलग थी, वहां पर थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल सबका अलग अलग है ना। लेकिन साइंस में थ्योरी जो पढ़ी है प्रैक्टिकल भी वैसे ही होना चाहिए। एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर जो है वो बेस्ड है। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी है कि साइंस में जो आपने एक्सपेरिमेंट जैसे किया वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है ना। अगला फीचर इसका देखते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस है वो उसके साइंस के जो प्रिंसिपल है हर जगह पर एक जैसे रहते हैं और समय के साथ साथ उसकी जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस हैं वो कम हो, जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन है वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम टू सेम देंगे गिवन सिचुएशन में भी, और जो भी बताए गए वो बिल्कुल वैसे के वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो डीलिंग हो रही है वो ह्यूमन बींग्स से हो रही है और ह्यूमन बींग्स रिएक्ट नहीं करते। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एग्जांपल लॉकडाउन से ही ले लेते हैं। अब फैक्ट्री बंद है तो मशीनें अपने आप तो काम नहीं करती, ये साइंस है ना। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन से निकल रहे हैं, तो वहां ह्यूमन बींग्स का नेचर जो है इसमें ऐड हो जाता है। तो जब मशीनों पर आपने काम किया तो वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी जैसे आपने कमांड दिया, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसलिए एक जो साइंस से यदि कंपेयर करें तो ह्यूमन फैक्टर की वजह से जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस कहलाती है, क्योंकि वो वैसे के वैसे रिजल्ट नहीं आते उनके साथ डील करके, तो ये एक सोशल साइंस बन जाती है। मैनेजमेंट का अगला जो नेचर है वो है प्रोफेशन। कि प्रोफेशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा है इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में। तो प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बेटा जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है, और जो एंट्री है इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई वकील नहीं बन सकता। आपने पढ़ाई की है, उसकी पढ़ाई करनी जरूरी होती है, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है कि आपने ये वाली पढ़ाई की है, ये मेरी ग्रुप है, ये मेरी बार काउंसिल है, तो वकील के लिए, मेडिकल काउंसिल है, डॉक्टर के लिए, ऐसे हर एक प्रोफेशन की होती है। तो मेन फीचर्स जो प्रोफेशन के हैं वो क्या है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और एक कंप्लीट सेट है प्रिंसिपल्स का, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट्स का, टर्म्स एंड एक्टिविटीज का। तो प्रोफेशनल डोमेन में आने के लिए वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर प्रोफेशन के अंदर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वहां पेपर देके एक एजुकेशनल डिग्री हमें लेनी पड़ती है। तो जिसने पढ़ाई की है वो ही वहां पे जा सकता है उस फील्ड में, दूसरा नहीं जा सकता। तीसरा है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो एफिलिएटेड होते हैं किसी एक एसोसिएशन से, वो रेगुलेट कर रही होती है वो अथॉरिटी, है ना। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है, मैनेजमेंट के लिए IMA है, मेडिकल के लिए भी मेडिकल एसोसिएशन है। तो उसकी एक मेंबरशिप लेनी होती है उस एसोसिएशन की।
जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो आपको वहां से मेंबरशिप आपकी कम हो जाती है कि अब आपका लाइसेंस मिल गया कि डॉक्टर ने गलत काम कर दिया तो वो डॉक्टरी करेगा नहीं अब बाद में, तो लाइसेंस कैंसिल होते हैं ना। तो प्रोफेशन की ये पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस हैं दे आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट कि उनको ऐसा व्यवहार करना है। जब वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके मेंबर्स में ऐसा व्यवहार मिलता है, तो अच्छा और बुरा वहीं से डिटरमिन होता है। और यदि ऐसा व्यवहार डिटरमिन नहीं होता तो उनके लिए वहां से मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन है उनका जो मेन एम है वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स। मैनेजमेंट की बात करो तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना डिग्री के भी मैनेजर बन जाते हैं कुछ लोग, है ना। लेकिन हाँ, पढ़ाई जिन्होंने की है उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन की हम बात करें तो जो है वहाँ की मेंबरशिप हमारी जरूरी होती है, लेकिन मैनेजर्स के लिए भी है तो जरूरी, लेकिन बिना उसके भी मैनेजिंग हो रही होती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है तो वो हर एक का अपना होता है, क्योंकि एक आर्टिस्टिक काम भी है, हर एक की अपनी स्किल्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। सर्विस मोटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। जनरली जो ज्यादातर मैनेजर है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो डॉक्टर और लॉयर की तरह ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट टू सम एक्सटेंट जो है वो प्रोफेशन तो है, लेकिन फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। और यही क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रही हूँ, यही क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसके बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या एक इनएग्जैक्ट साइंस है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ऑप्शन सी, principles of management have to be modified according to the given situation. And option D, management involves dealing with human behavior and outcomes cannot be predicted with utmost accuracy. तो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस के रिलेवेंट नहीं है? आपने आंसर देख लिया होगा, ग्रुप में लिखा होगा। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड बिकॉज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड द आउटकम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए प्रिंसिपल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। तो ये आंसर है। अब ये बेटा लास्ट मैंने आपको जैसे बताया था कि ये क्लास का एंड है और इसके बाद आई विल स्विच ओवर माय माइक टू अरुण सेठी सर फॉर द क्विज। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आपने लिखना है। अगली क्लास में जब आप आएंगे तो तैयारी से आएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। तो मैनेजमेंट के मीनिंग से जो टॉपिक हमने लिया था उसके ये क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिनको यहाँ डिस्कशन तो हम कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते इनके आंसर्स। तो ये आपको होमवर्क की तरह से असाइनमेंट आपको मैं दे रही हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, उसका प्रोसेस, ये किस तरीके से स्टेटमेंट हमारे पास पेपर में आती है। सीबीएसई के क्वेश्चंस ज्यादातर हमने लिए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो वो आपको आने चाहिए। इनके आंसर्स आप जरूर लिखिएगा। आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला टॉपिक है फीचर्स से। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा टॉपिक का, ये जो इसके टाइटल है वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चंस हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा कॉपी में। अगला टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। टेक द स्क्रीनशॉट
और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, ये YouTube पर वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप बाद में इसको देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को देख करके, और इनके आंसर्स जरूर 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 लिखेंगे बेटा. So thank you so much to all the people who are behind me. It was my voice only. So I'm stop sharing and I hand over this to Arun sir now. Thank you, Jyoti ma'am. Thank you so much, sir. I hope my students must have enjoyed the session. और ये बेनिफिट आप जरूर अवेल करेंगे, क्वेश्चंस हैं वो पूरा करेंगे. तो आप जो है, मैं अरुण सर को ये माइक है हैंड ओवर कर रही हूँ ताकि जो आपकी क्विज है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Jyoti ma'am. Good morning, students. Hope आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. आज ज्योति मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रबंध के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. जैसे मैंने भी आपको थोड़ा सा पहली क्लास में बताया था, तो आज ज्योति मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से और भी बातें आपको बताई हैं. होप आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा उनकी बातों से, और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. हर एक टॉपिक के बाद उन्होंने आपसे क्वेश्चन भी शेयर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं उस टॉपिक के बारे में. तो मुझे लगता है ऐसा कि आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा सारी स्टडी में विद क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा और देखते हैं कि आज तक आपने क्या सीखा आज की क्लास में. तो एक थोड़ी सी क्विज करते हैं और देखते हैं, आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए और हम देखते हैं कि कितने बच्चों को आज कितना समझ में आया है. और सारे के सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. मैं जानता हूँ सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देंगे. तो मैं आपकी आंसर्स का वेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और आई एम स्टार्टिंग द क्विज. तो सबसे पहले हम MCQ ऑब्जेक्टिव्स टाइप लेते हैं क्वेश्चन. तो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है. आप टाइप करिएगा आंसर. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स डैश एंड डैश. तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप फटाफट टाइप करिए आपके चैट बॉक्स में, और हम देखते हैं कि कितने बच्चों को इसका आंसर आता है. और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके CBSE में आ चुके हैं लगभग. जल्दी जल्दी टाइप करिए, मैं देख रहा हूँ आंसर. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, वंडरफुल, इफेक्टिवली, एफिशिएंट, इफेक्टिवली. देख रहा हूँ मैं आपके यूट्यूब पे आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत सारे बच्चों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है. बहुत बढ़िया, शाबाश. इसका मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है. बहुत ही अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. मैं यूट्यूब पे सारे आपके आंसर्स देख रहा हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है इसका. तो इसका आंसर है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो जोरदार क्लैपिंग उन सबके लिए जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. मैं सबकी चैट देख रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ट्रायल. इसमें तो आप ज़्यादातर बच्चे पास हैं. नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स है. एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद डैश कॉस्ट. तो फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए अपने चैट बॉक्स में. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. मुझे लगता है जैसे पिछली बार करेक्ट आंसर आया, इसका भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ही आना चाहिए. प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्स क्विकली. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. I am waiting, please. Yes, yes, very good, very good, very good. बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट. बहुत सारे बच्चों के बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं. गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपको तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कॉन्सेप्ट. गुड. तो इसका आंसर है मिनिमम कॉस्ट. जैसे कि बताया था, एफिशिएंसी मीन्स होता है कुशलता. तो उसमें मेनली हमारा एम ही क्या होता है, लागत को कम करना. तो बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं यूट्यूब पे. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ यू. गुड, कीप इट अप.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। मैनेजमेंट इज ए डैश फंक्शन टू हैव अडॉप्ट इटसेल्फ फॉर टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसका भी आंसर जरा टाइप कीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग। मैनेजमेंट इज ए डैश फंक्शन टू हैव अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी अभी मैम ने बताया भी था, याद करिए फटाफट। वातावरण के अनुसार क्या बोलते हैं हम उसको, कौन सा फंक्शन होता है जब हम अपने आप को चेंज करते हैं वातावरण के अनुसार। फटाफट टाइप कीजिए अपने चैट बॉक्स में। अभी अभी बताया था मैम ने, याद करिए फटाफट, आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। डायनामिक फंक्शन, वेरी गुड। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, तो इसका आंसर है डायनामिक फंक्शंस, वेरी गुड। ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रबंध एक गतिशील कार्य है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में नोकिया का एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद होगा, कि नोकिया इसीलिए पीछे पीछे रह गया क्योंकि उसने अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाला। वो क्या नहीं लेके आया था, एंड्रॉयड, इसीलिए वो पीछे रह गया। तो हमें अपने आप को अनुसार वातावरण के ढालना होता है। बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आपके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिंक्स वर्क पीपल एंड। अभी अभी आपकी स्लाइड पर मैम ने दिखाया था, याद करिए फटाफट, कि मल्टी डायमेंशनल में क्या होता था हम। और मैंने अभी चैट बॉक्स में भी आपको लिखा था हिंदी में, शायद आपको याद हो तो, प्रबंध बहुआयामी है। तो इसमें 3 चीजें बताई थी मैम ने। थर्ड क्या है, जल्दी लिखिए अपने चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। थर्ड क्या होगा, जल्दी, क्विकली, आई एम वेटिंग 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 फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस यस, अब आ रहे हैं आंसर्स, गुड, अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोस्टली आंसर्स आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, आई एम इम्प्रेस्ड with all of you, you are excellent, yes, answer is correct, operations। तो मैनेजमेंट बहुआयामी है क्योंकि उसमें 3 चीजों को मैनेज करता है, वो काम का प्रबंध भी करता है, लोगों का भी, और परिचालन यानी ऑपरेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब तो मुझे लग रहा है आप सारे करेक्ट दोगे आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। मैनेजमेंट इज ए एंड डैश फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इन इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अभी अभी मैम ने आपको बताया था, और 11th का आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि 11th को याद करो। तो याद करो आप, बिल्कुल, इसका आंसर भी वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही सिंपल है वैसे ये, जल्दी जल्दी। आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, अभी मैम ने आपको याद भी दिलाया था। वेटिंग 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 फॉर योर आंसर्स, यस यस यस, क्विकली, यस, गुड 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 गुड। अब अच्छे आंसर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, यस 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 यस, गुड। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। तो अदृश्य शक्ति है भाई, प्रबंध को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। तो इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, वेरी गुड आंसर्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस डैश बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये भी मैडम ने आपको आज बताया था, याद करिए जरा, क्या आना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में। मैनेजमेंट क्या इंक्रीज करती है जिसकी वजह से, क्या, कॉस्ट को रिड्यूस करके और उत्पादन को बढ़ा के। प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस डैश बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो अभी अभी मैडम ने स्टार्ट में ही आपको कुछ बताया था, याद करिए जरा फटाफट। ओके ओके, मोस्टली आंसर्स आर आल्सो करेक्ट, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है एफिशिएंसी, कुछ लिख रहे हैं इफेक्टिवनेस, लेकिन ज्यादातर का आंसर ठीक है। तो आइए चेक करते हैं
एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें क्या बोला उन्होंने, रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो मेन आपको यही बताया था कि भाई कुशलता में क्या होता है, लागत कम करनी होती है। प्रभावशीलता तो वो है कि हम काम को समय पर पूरा कर लें, लेकिन जब हमें कॉस्ट भी रिड्यूस करनी होती है और उत्पादन को बढ़ाना होता है तो हमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि हम कुशल है, यानी कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब थोड़े से ट्रू फॉल्स पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अब आपको टाइप करना पड़ रहा है, यहाँ पे आसानी होगी आपको, टी और एफ भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैनेजमेंट इज नॉट ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स फॉर्म में। तो जल्दी से सिर्फ ट्रू और फॉल्स टाइप करिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैनेजमेंट इज नॉट ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, यानी कि प्रबंध बहुआयामी क्या कार्य नहीं है या क्रिया नहीं है। तो ये आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से टाइप कीजिए अपनी स्क्रीन पे। एफ एफ एफ। ओके, मोस्टली आंसर्स आर करेक्ट। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही था जी, क्या है ये, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्रबंध तो बहुआयामी क्रिया है, कि वो तो इतनी सारी चीजों को संभाल रही है सर, काम का प्रबंध भी करती है, लोगों का प्रबंध भी करती है और परिचालन का प्रबंध भी करती है। तो ये तो फॉल्स है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मैक्सिमम कॉस्ट। तो इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। फटाफट अपनी स्क्रीन पे टाइप कीजिए ट्रू और फॉल्स। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मैक्सिमम कॉस्ट। तो आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फटाफट अपनी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। गुड 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 गुड, वेरी गुड। मोस्टली आंसर्स आर करेक्ट, बिल्कुल सही है जी। स्टेटमेंट क्या है ये? फॉल्स है, क्योंकि हमें कॉस्ट को क्या करना है एफिशिएंसी में, मिनिमाइज, जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। तो ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट रेजिस्ट द पीपल्स टू अडॉप्ट द चेंज इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो तीसरी स्टेटमेंट आपके सामने है बेटा, मैनेजमेंट रेसिस्ट द पीपल्स टू अडॉप्ट द चेंजेस इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है जी। मैनेजमेंट रोकता है क्या लोगों को, कि जो भी कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड में, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उससे उनको रोकता है, रेसिस्ट करता है क्या? तो आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। फटाफट टाइप कीजिए अपनी चैट बॉक्स में। गुड गुड गुड, बहुत सारे बच्चों के सही जवाब है, बहुत सारे क्या, लगभग सबके ही सही जवाब आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं आज, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर भी क्या है जी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा क्या, कि मैनेजमेंट क्या है जी, डायनामिक है, गतिशील कार्य है। वो अपने आप को क्या करता है, वातावरण के अनुसार ढालता है, ना कि रोकता है। उसका काम ही है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल देना। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स थी। बहुत बढ़िया आंसर्स, गुड। चलिए जी, अब थोड़े से एमसीक्यू भी ले लेते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए, फिर दूसरे ट्रू फॉल्स दिए, अब क्या है, एमसीक्यू। तो इस सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको हर तरह के लिए प्रिपेयर रहना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, हर टाइप के क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे। तो जी, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हुज इज टू डू इट, हाईलाइटेड वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई इट। तो जी, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, आज भी थोड़ा सा मैडम ने बताया था। यानी कि एडवांस में हमें ये सोच लेना कि क्या करना है, कौन करेगा, ये कैसा फंक्शन है, यानी कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग पहला ऑप्शन है आपके पास, दूसरा है जी प्लानिंग, तीसरा है जी डायरेक्टिंग, चौथा है जी कंट्रोलिंग। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन हाईलाइटेड हुआ है ऊपर वाली स्टेटमेंट में, और मुझे उम्मीद है इसमें भी आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। वेट कर रहा हूँ आपका
अपने चैट बॉक्स में जस्ट ABCD टाइप कर सकते हैं आप। जल्दी से करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। प्लीज टाइप ABCD, A, B और C और D, विच इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको गुड आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। मोस्टली बच्चों के करेक्ट हैं इसमें भी। क्या है जी आंसर इसका? आंसर है प्लानिंग। गुड, क्योंकि आपको बताया था कि वे प्लानिंग क्या होता है, नियोजन। तो सबसे पहला काम यही है प्रबंध का, नियोजन करना। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमें करना क्या है और इसको किया कैसे जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपनी पहली क्लास में भी कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान कैसे आया होगा दिमाग में, क्योंकि कोरोना आ गया, सारे स्कूल्स बंद हो गए, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि अब कैसे किया जाए, कैसे स्टडी को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, प्लान किया। क्या कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं। तो सबसे पहला काम ही क्या होता है बेटा, प्लानिंग। गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड। तो ये भी आप देखिए एक फंक्शन से रिलेटेड है। पहला ए ऑप्शन है इफेक्टिवली, बी मैनेजमेंट, सी एफिशिएंसी, डी प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड, यानी वो प्रक्रिया जिसके थ्रू हम दूसरों से कार्य करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को। तो ये भी आपसे हो जाना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। चैट बॉक्स में टाइप करिए आप फटाफट A, B, C और D। फर्स्ट ऑप्शन इज इफेक्टिवली, सेकंड इज मैनेजमेंट, थर्ड इज एफिशिएंसी एंड फोर्थ इज प्लानिंग। टाइप करिए बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत ज्यादा करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप तो सारे इंटेलिजेंट हैं जी, बहुत बढ़िया आंसर है। तो आंसर देखते हैं जी, मैनेजमेंट, बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेशन यही थी, आपको सबसे पहले क्लास में बताया यही गया था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो बेटा ये तो डेफिनेशन ही है मैनेजमेंट की, तो बहुत बढ़िया आंसर है कि मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, which characteristics of management is highlighted in the above statement। तो जी देखते हैं, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जी ग्रुप एक्टिविटी, बी है जी हमारा इंटेंजिबल फोर्स, सी है जी हमारा डायनामिक फंक्शन और डी है जी हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, ABCD कुछ भी आप टाइप करिए जो आपको ठीक लगता है आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हुआ है लेटेस्ट, कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। यानी मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं इसकी प्रेजेंस को। तो बेटा क्या है स्टेटमेंट में, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर है इसका बेटा इंटेंजिबल फोर्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, मैनेजमेंट अदृश्य शक्ति है, इसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जी। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, which characteristics of management is being highlighted here। तो जी पहला ऑप्शन है आपके सामने, ए गोल ओरिएंटेड, बी मल्टी डायमेंशनल, सी डायनामिक, डी परवेसिव। तो आपको जो भी आंसर ठीक लग रहा है फटाफट अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। यानी मैनेजमेंट में 3 आयाम होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, यानी कि काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है बेटा? गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक और परवेसिव। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
बहुत बढ़िया आंसर आ गए हैं सबके, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है जी, प्रबंध बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं इससे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वेरी हैप्पी। चलो जी, अब लास्ट में थोड़ा सा एक अलग टाइप के भी ले लेते हैं, मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं आपके, मैचिंग वाले क्वेश्चन की जी, मैच करो इसको उससे। तो जी एक इस तरह के क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे होते हैं। तो जी मैच द कॉलम्स फॉर आइडेंटिफाइंग द मैनेजमेंट फंक्शंस, तो आपको कॉलम्स को मैच करना है कि कौन सा कॉलम किससे मैच होगा मैनेजमेंट के फंक्शन से। तो देखते हैं जी, अब आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में 2 ऑप्शंस हैं, सेकंड कॉलम में 3 है। तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में ये लिखना है, जैसे फर्स्ट का आंसर आपको ए लग रहा है, बी लग रहा है या सी लग रहा है, तो आप 1 लिखेंगे, 1 के आगे ए या बी या सी, यानी 1A 1B या 1C, यानी 1 का आंसर अगर 1 लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए 1A, अगर आपको बी आंसर लग रहा है पहले का तो आप लिखेंगे 1B, अगर आपको सी आंसर लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए 1C। ऐसे ही जो सेकंड है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो अगर सेकंड आपको लग रहा है कि ए आंसर है सेकंड का, प्लानिंग, तो आप सेकंड ए लिखिए यानी 2A। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि सेकंड का आंसर बी है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए 2B। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है सेकंड का आंसर सी है तो 2C। समझ गए आप किस तरीके से टाइप करना है आपको। तो पहला है, इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये मॉनिटर करता है क्या, आपको ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ सारे फंक्शंस, कि भाई ये मॉनिटर करता है कि सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं गोल को पूरा करने के लिए जैसा हमने सोचा था। मॉनिटर करता है तो क्या होता है जी, वो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है या डायरेक्टिंग है। तो अगर आपको फर्स्ट का आंसर प्लानिंग लग रहा है तो 1A लिखिए, अगर बी लग रहा है तो 1B लिखिए, अगर सी लग रहा है तो 1C लिखिए। ऐसे ही जो बी है यानी सेकंड है हमारे पास, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी पहले एडवांस में डिसाइड कर लेना, तो वो आपके हिसाब से ए ऑप्शन है, बी है या सी है, तो सेकंड का ए, सेकंड बी या सेकंड सी, इस तरीके से टाइप करिए फटाफट। आई एम वेटिंग, और आंसर आने शुरू भी हो गए हैं। 1B 2A 1B 2A, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, गुड। तो देखते हैं जी, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। फर्स्ट का आंसर है बी यानी कंट्रोलिंग, और सेकंड का आंसर है ए प्लानिंग, बहुत बढ़िया, गुड। चलो जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं बस, ज्यादा नहीं, फिर मैच का देखते हैं जी। मैच द कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैम ने पढ़ाया आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो देखते हैं जी, सेम वैसे ही आपको आंसर्स टाइप करने हैं। सर्वाइवल, तो सर्वाइवल किससे जुड़ा है, यानी क्या लिंक्ड है इसका, ए आंसर है इसका, एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, या बी से लिंक्ड है ये, ए बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, या सी है इसका ऑप्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एनफ रिवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। तो बेटा अगर आपको ए लग रहा है 1A लिखिए, बी लग रहा है 1B लिखिए, और सी लग रहा है तो 1C लिखिए। ऐसे ही प्रॉफिट के बारे में सोचिए क्या आंसर हो सकता है। प्रॉफिट का ए हो सकता है क्या, एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क फॉर द बिजनेस, या बी हो सकता है, ए बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, या सी हो सकता है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एनफ रिवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। तो बेटा फटाफट टाइप कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। गुड गुड, आंसर आने शुरू हो गए आपके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं ज़्यादातर के। फर्स्ट का आंसर है सी और सेकंड का आंसर है ए। फर्स्ट सी सेकंड ए, दोबारा दिखा देता हूँ। फर्स्ट का सी यानी कि प्रॉफिट यानी सर्वाइवल रहने के लिए क्या है कि उसके पास इतनी रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि वो कॉस्ट को कवर कर ले, तभी तो वो जी पाएगा कोई भी बिजनेस। भाई जब तक उसकी रेवेन्यू कॉस्ट को ज़्यादा नहीं करेगी तब तक तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ऐसे ही क्या है हमारा सेकंड का क्या है जी, ए। क्यों प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है,
एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो बेटा प्रॉफिट कमाना तो जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क बहुत होता है और रिस्क के लिए मुझे प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, साथ में कॉस्ट भी कवर करनी है। तो इसीलिए प्रॉफिट ए से लिंक्ड है और सर्वाइवल सी से लिंक्ड है। तो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं। तो मैं फील करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। आज हमने कोशिश की क्विज से इंटरैक्टिव सेशन बनाने की, और आपके रिस्पॉन्स से लग रहा है कि बहुत बढ़िया आपको मजा आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। थैंक यू। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको आज की क्लास के बारे में, या कोई कमेंट हो आपका आज की क्लास के बारे में, तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाके अपने। वी आर सीइंग द चैट बॉक्स। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हम आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स के थ्रू। आप अपने कमेंट दे सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई भी क्वायरी है आपकी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा आज की क्लास का। तो अब मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूं और आपकी चैट को देखता हूं। बेटे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, और आज की क्लास के बारे में जो भी आपका व्यू है आप वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम सब लोगों की टीम Suggestions required for improvement as well. यस So today's positive response is really appreciable, and all the students really need applaud for the same. And the same kind of participation we expect from you in all forthcoming sessions to be taken by all different teachers of the DOE. So thank you, Arun sir, for a great support in the quiz. And I think we have to keep this quiz on regular basis now. yes, thank you. Over to you. Yes, thank you. What is the meaning of directing? एक क्वेश्चन आया अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे। डायरेक्टिंग बेटा आपको बताया था निर्देशन करना होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्देशन करना। मैंने आपको बताया था ना, एक एग्जांपल भी दिया था कि डायरेक्शन क्या होता है। जैसे मूवीज में हम देखते हैं डायरेक्टर का नाम आता है, डायरेक्टर हम जानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, करण जौहर है, आपने सबने सुना होगा, सर बहुत अच्छा डायरेक्टर है, इसकी सारी मूवी। बेटा डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था। इसमें वो निर्देशन देता है कि कैसे करना है, मोटिवेट करता है, एज ए लीडर वर्क करता है, कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। आप दोबारा जाके लास्ट क्लास का वीडियो देखिएगा, और मैंने उसमें क्लियरली डिफाइन किया था डायरेक्शन क्या होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है सर साइंस के बारे में। हाँ आप दीजिए। कि मैनेजमेंट एज ए साइंस समझनी है। तो बेटा जैसे हमने बताया कि साइंस जो है एक प्योर साइंस जो होती है, उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। आपने यदि एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाया है तो वो सेम रिजल्ट देगा यदि आपने उसी प्रपोर्शन में मिलाया। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स है, उनको आपने जैसे काम बताया वो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सेम रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट साइंस जो है वो पूरी एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर होती है। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम रिजल्ट्स आपको देंगे एवरी टाइम, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो आपको सेम रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि ये एक इसी तरह से हम इसको प्रूव करें कि ये एक सोशल साइंस है। तो हम 4 फीचर है, इसको यस और नो देखते हैं। पहला फीचर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में है, अब मैनेजमेंट में कंपेयर करते हैं कि हाँ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड है साइंस में, हाँ है, मैनेजमेंट में है, हाँ है। इसी तरह तीसरा पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी,
साइंस की है, हाँ है, लेकिन मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट की प्रूव नहीं होती, क्योंकि जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करती है। तो कंक्लूजन यही है कि मैनेजमेंट जो है, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस का जो एक प्रिंसिपल है इसको फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है। और जब इनएग्जैक्ट साइंस है तो हम कह सकते हैं इसको कि ये प्योर साइंस नहीं है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसकी तरह ये प्योर साइंस नहीं है, लेकिन एक सोशल साइंस है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तो आपका जवाब इसी तरह से होगा। अदर क्वेश्चन सर, यू मे टेक अरुण सर। Yes, yes, I am watching the questions. But what is pervasive? बेटा सर्वव्यापक होता है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक। प्रबंध हर जगह है, सर्वव्यापक है। इसका मतलब ये है कि प्रबंध की जरूरत हर जगह है, हर जगह। आप अपने घर से लेके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक देखोगे तो प्रबंध हर जगह, बिना प्रबंध के तो चल ही नहीं सकता। अभी हम भी आपकी क्लास ले रहे हैं तो क्या बिना प्रबंध के ये पॉसिबल है? सर्वव्यापी है। हमने भी पूरा मैनेज किया कि आपको कैसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, क्विज लेनी है इंटरेस्ट बनाने के लिए, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटा मैनेजमेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता। सर्वव्यापक है, प्रबंध हर जगह है। आप अपने स्कूल में ही देख लीजिए, प्रिंसिपल सर होते हैं आपके, वो मैनेज करते हैं वहाँ पर सारा, कौन सा टीचर कौन सी क्लास लेगा, कब पीरियड लगाना है, कोई भी चीज होती है तो आपके एचओएस देखते हैं स्कूल में, प्रिंसिपल, वो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, और बिजनेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वव्यापी है, यानी ये हर जगह है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ प्रबंध की जरूरत ना हो, सर्वव्यापक है ये। तो इसलिए हम बोलते हैं कि परवेसिव है बेटा। और कोई डाउट बेटा? आई एम वेटिंग। यूट्यूब में भी जवाब दे रहे हैं हमारे यूट्यूब फैसिलिटेटर्स, ऑल टीचर, ज्योत्सना मैम, फुलारा सर, मनीष सर, मुकेश सर, ये सभी जवाब दे रहे हैं कि मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर जगह इसकी जरूरत है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था पढ़ाते हुए कि यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप उन्हीं किताबों से उतने नंबर नहीं ला पाते। जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, आप ही की क्लास में दूसरा बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा से नंबर लेकर आ पाता है। तो दिस इज ड्यू टू मैनेजमेंट, कि आपने उतने ही रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से यदि उपयोग किया है तो आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन इसकी जरूरत सब जगह है। आप अपने घर से लेकर, अपने आप से लेकर और एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक आप मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट परवेसिव है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ इसमें, एक बच्चे ने पूछा है मुझे, सर ये समझ में नहीं आया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभावपूर्णता आपको बता दिया था। ऐसे ही एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। तो दोनों में अंतर क्या आपको सिंपल टर्म्स में मैम ने समझा दिया, फिर भी मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रभावपूर्णता या इफेक्टिवनेस क्या होता है। उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें काम को पूरा करना है, चाहे लागत क्यों आए, कितनी आए, मेनली हमारा टारगेट क्या है बेटा, काम को पूरा करना। तो हम बोलेंगे कि ये प्रभावपूर्ण है, इफेक्टिव है। लेकिन कुशलता में हमें मेन क्या होता है, काम को पूरा करना है लेकिन न्यूनतम लागत पर, यानी कॉस्ट को कम से कम करके। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ही यही है। एक बोल रहा है कि काम को पूरा कर लीजिए आप, लेकिन दूसरा बोल रहा है काम को पूरा तो करना है लेकिन कॉस्ट को मिनिमाइज करके, रिसोर्सेज को कम करके। तो हमारा मेन इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हमें अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिल जाए टाइम पर। लेकिन एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस भी देखा जाता है बेटा उसमें, कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो पाए। तो ये जो मेन डिफरेंस कॉस्ट का ही है। हाँ जी, मेन डिफरेंस जो है वो कॉस्ट का है। एक 100 रुपए में काम कर रहा है, एक 200 में काम कर रहा है, तो कौन होगा, फर्क क्या आएगा? जो कम पैसों में काम कर रहा है, कम खर्चे में काम कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। ये फर्क है, मेन जो फर्क है। एक इसी तरह से क्वेश्चन जो है बच्चे ने डायनामिक के बारे में भी पूछा है। जैसे सर ने हिंदी में भी बोला गतिशील, मतलब वो चलता है, वो एक फिक्स्ड स्टेट में नहीं है, इट इज मूवेबल। तो इसका मतलब यह है कि जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम कोप अप कर रहे हैं। अब आप घर में लॉकडाउन में बैठे थे, ठीक है ना, ये चेंज था, क्योंकि घर में बैठने की आदत नहीं है सबको, अपने अपने काम पे जाना है, ऑफिस में जाना है, स्कूल में जाना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, जो भी काम है सबके अपने अपने काम है। तो ऐसे ही जब चेंज आया लॉकडाउन का, तो इसके अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट क्या किया,
कि चेंज किया हमने, टीचिंग का जो काम है वो सफर ना हो, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग दी। बार बार मैं इस एग्जांपल को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये चेंज है कि मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है बेटा कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जब एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो आप एक सबसे एग्जांपल ले लिए टाइपराइटर्स का। जब टाइपराइटर्स जो है चल रहे थे, सब टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन जब कंप्यूटर आ गए थे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया मार्केट में। उस टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ में हमें अपने आप को चेंज करना है, अदरवाइज हम क्या होगा कि जो बिजनेस है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो तुरंत आपने देखा होगा हर जगह पर, बैंक्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, सभी जगह पर कंप्यूटर का उपयोग जो है वो बढ़ता चला गया। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस एक बिजनेस के ऊपर पड़ता है। और सर क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा है, डिफरेंट। उसमें जी। ये पूछा है बच्चे ने कि ये मैनेजर प्रैक्टिस कहाँ करते हैं मैनेजमेंट की? आपने बताया कि प्रोफेशन होता है, तो वो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं मैनेजमेंट की? तो बेटा अच्छा। जैसे जैसे सीए होते हैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से कोर्स करके। सीएस हो गए जी, वो भी प्रैक्टिस करते हैं सर। कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, वो भी अभी मैम ने बताया जी प्रोफेशन है। तो सर कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? आप इनको एग्जाम्पल दीजिए। तो जब इनकी बिल्कुल। प्रैक्टिस सेशंस होते हैं तो घर में सैंपल्स बेचने आते हैं, मार्केटिंग इस एक्चुअली तरह में से बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब अपनी लाइफ में आप देखोगे अपने आसपास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके के कोर्स कर रहे होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग के लिए वो आपके पास आते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को करेंगे कि किस तरीके से जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और अदरवाइज तो प्रैक्टिस मैनेजर की जो होती है वो बिजनेस में ही होती है। जब वो जॉब में आता है तो अपनी मैनेजिंग एबिलिटीज को लेता है, और यदि वो अपना बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो अपनी सेल्फ जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो अपने अपने एंटरप्रेन्योर की तरह से इस्तेमाल करता है। तो एक चीज मैं Yes, और sir. ऐड करना चाहूंगा। जैसे बेटा आपने सीएस आईसीडब्ल्यू के बारे में सुना है, ऐसे ही आपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी सुना होगा। आईआईएम है हमारे बहुत सारे, लगभग 13 आईआईएम है हमारे इंडिया में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, कोलकाता, सुने होंगे आपने जरूर, आईआईएम लखनऊ। तो बेटा यहाँ पर होती है बेसिक प्रैक्टिस। अभी मैम ने बताया भी कि एज ए प्योर प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट, अभी हम प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं इंडिया में। अभी एज ए प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है ये, लेकिन जितने भी आईआईएम है वो इसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं बेटा कि मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आप देखेंगे, या आप में से बहुत सारे बच्चे आईआईएम का टारगेट लेके भी बैठे होंगे कि सर हम टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में लेंगे, तो वहाँ आप ज़्यादा जान पाओगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन वर्क करता है। तो टाइम वैसे हो गया है, जी। और अगर आपके बेटा फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वायरीज को बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल। और हाँ बिल्कुल सर, जितने भी सजेशन हैं वो जरूर आप अपने सजेशन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हमें अगला जो प्लान है वो करना है। क्योंकि प्लान अब अभी यहाँ पर कंट्रोलिंग आ जाएगी है ना, फिर अकॉर्डिंगली हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा वो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन के साथ होगा। तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अदरवाइज आई विल एंड अप विद एंड सपोर्ट अरुण सर, बिकॉज विदाउट यू this could not be possible. And thank you all the team members who are directly or indirectly involved with us to session by these 2 lines. Just because something is not happening right, just because something is not happening right now does not mean that it will never happen. So those who have not joined till now, this is a message to all of them कि आप ज्वाइन करिए और इन जो क्लासेस हैं इनका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच once again to all of you who are directly or indirectly is a great support to us. Thank you so much. Bye bye. We'll meet you in the next session. And do assignment. Don't forget to do assignments. Okay, thanks to all. You can leave the class.